then after cell organelles like this mitochondria, Golgi complex, the other component that is cytoskeleton that includes the microtubules, microfilaments, and intermediate filaments, and different names have been given to intermediate filaments. Okay, as per their location, like cytokeratin in this epithelium. Okay, so after cytoskeleton, another component because in epithelial cells, particularly the cells, they are attached to each other. Maybe by the tight junction, maybe by maybe they are tightly attached to each other, or there is some loose attachment, we can say, or there is some communication between the adjacent cells. Okay, so these are known as cell junctions because adjacent cells, they are attached to each other. Even they communicate with each other with the help of some types of junction, and these are known as cell junctions. Okay. So mainly tight junctions, what is the role of tight junction? That prevent the entry of the substance which is present in the lumen or outside the epithelium to the subepithelium area. So this is the role of the tight junction. Okay. In some epithelium, just beneath just below the tight junction, there is presence of the adherent junction. Okay. And then even communicating junctions are present in some of the this tissue, like in osteocytes, because the nutrition that move from one cell to another with the help of cell junction. Okay, when one cell gets the nutrition, that nutrition can be transferred to the another cell, because as you know, this bone is formed by the apart from the organic substance, means apart from the cells and fibers, there is presence of the this concretion, or that is the inorganic material. ठीक है, inorganic material होगा तो इतने जल्दी से diffusion नहीं हो पाएगा, and that's why there is the requirement of the communication between the cells. ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कैनालिकुली होती है, और between the cells the कैनालिकुली एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है, and the osteocytes की processes होगी, they are also come in contact with each other. Hence, the nutrition from one cell that goes into the another. Okay. Now I am sharing this slide. Okay. Now slide is visible. I am changing the slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो रही है. Okay. Just wait. To form this cell junction, there is an important role of transmembrane protein. Okay, transmembrane protein, where the transmembrane protein is present? Anybody? In cell membrane. Cell membrane. Okay, so there is important role of transmembrane protein, because this transmembrane protein it attaches the cell membrane of one cell to the other. Okay, so there as per their nature, different name have been given, like in tight junction, because tight junction are also known as occluding junction. Hence the protein has been given as occluding protein. Okay, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि in case of formation of this junction, there is important role of transmembrane protein. तो आपको transmembrane protein क्या है ये पता होना चाहिए. Okay, तो now next slide. What are cell junctions? The cells are held together by means of connections, okay, which help in communication between cells. Such connections are known as cell junction or intercellular junctions. Okay, is it clear? So they actually cell membranes of adjacent cells, they are attached to each other, maybe tightly, then that is known as tight junction, or maybe some space is there, some loose connections are there. Only the cell membrane, they are adhere to each other. एक होता है adhere होना, बस जुड़ी हुई है हल्की सी, और एक होता है बिल्कुल occlude कर रहा है, that is known as tight junction. ठीक है, तो hence as per the requirement, different types of cell junctions are there. Mainly they are categorized into three. One is tight junction. ठीक है, तो another name has been given is zonula occludens, because occluding junction है, ये tight है काफी. ठीक है, intermingling होती है of this transmembrane protein of this cell membrane, hence known as tight junction. Means
नथिंग गेट पास थ्रू दिस जंक्शन, ठीक है, तो इसलिए इनको अपन ने क्या कहा है, टाइट जंक्शंस. एंड सेकेंड इज इस गैप जंक्शन को अपन थर्ड में ले लेंगे. सेकेंड इज एंकरिंग और एडहरिंग जंक्शन, ठीक है. सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, टाइट जंक्शन की, ठीक है. सेकेंड इज एंकरिंग और एडहरिंग जंक्शन. व्हाट इज द रोल ऑफ एडहरिंग जंक्शन? in this junction, the cells, they are adhered to each other, ठीक है. They are not tightly attached as in case of tight junction, ठीक है. Hence known as zonular adherence. As per the shape of anchoring junction or adhering junction, they are divided into two. One is known as macula densa और desmosome, because जो शेप आप देखोगे बटन लाइक होता है. और दूसरा होगा दिस adhering junction में जोनुलर adherence जिसको कहेंगे, that is belt like, ठीक है. तो वो बेल्ट लाइक फैशन में लंबाई में जाएगा, दैट इज नोन एज जोनुलर अडेरेंस. एंड अनदर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एंकरिंग जंक्शन इज नोन एज मैकुला डेंसा, ठीक है. आपको पिक्चर दिखाई देगी, दैट इज डिस्क लाइक, ठीक है. बोथ साइड्स वी सी द प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स, adapter protein that give the button like shape to the this junction, hence known as desmosome or macula densa. Okay, the third junction, which is known as gap junction, in some of the molecules they get passed from one cell to another through the presence of some communication between the cell membrane, ठीक है. एक प्रकार से उनमें एक होल बन जाते हैं, पोर्स बन जाएंगे. बिकॉज ऑफ दैट पोर्स समथिंग विच इज प्रेजेंट इन वन सेल दैट गेट ट्रांसफर टू द अदर सेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गैप जंक्शन, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स. जैसे मैंने एग्जांपल बताया था अभी, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है. ऑस्टियोसाइट्स में जो भी न्यूट्रिशन होगा बिकॉज ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द टू प्रोसेसेस ऑफ द दिस ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो जो भी न्यूट्रिशन इन वन ऑस्टियोसाइट होगा दैट कैन ट्रांसफर टू द अदर ऑल्सो. ओके, तो तीन प्रकार के जंक्शन हो गए, टाइट जंक्शन, गैप दिस एंकरिंग जंक्शन और एडहरिंग जंक्शन, एंड थर्ड वन इज गैप जंक्शन. ओवरऑल पिक्चर of this cell, this is one cell, second and third cells are there. Okay, these are the three cells, 1, 2 and 3 cells, ठीक है. Generally these are the processes of the cell, ठीक है. The cells which are attached to each other in the proximal part, this is the tight junction. Okay, तो tight junction में क्या होता है, the upper part, ठीक है, they are attached by the protein, there is presence of the transmembrane protein which is occludin protein, which I will tell you in the next slide, ठीक है. तो ये जनरलाइज आपको बता रहे हैं, दिस इज अ टाइट जंक्शन हो गया, ठीक है. ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर दी गैप जंक्शन, ये दिख रहे हैं बीच में पोर्स आर देयर, तो वन थिंग गेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस सेल टू अनदर सेल. एंड थर्ड, दिस इज द अडहेरिंग जंक्शन, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अडहेरिंग जंक्शन होगा, ठीक है. और उसके बाद ये वाला है, दिस इज डेस्मोसोम. आप देख रहे डिस्क लाइक अपीयरेंस हो रहा है, डेस्मोसोम्स, ठीक है. तो दिस डेस्मोसोम्स एंड दिस अडहेरिंग जंक्शंस, these are the adhering junction, they are called as the zonular adherence. Okay, इसके ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है, this is tight junction, और ये आपको दिख रहा है adhering junction, ये दिखाई दे रहा है, this is tight junction, this is adhering junction. Here this is tight junction, this is adhering junction. Okay, so when this junction that is present in the form of belt, ठीक है, तो known as zonular adherence. When present in the form of disc, that is known as desmosomes. ठीक है, तो there is role of proteins, different proteins, like some proteins they are transmembrane proteins, some proteins which are present in the cell, ठीक है. their role is to anchor, anchoring का रोल रहेगा. टू एंकर मतलब किसी को चीज को फंसा के रखना है, ठीक है, एंकर करके रखना, ठीक है. तो सम एंकर प्रोटीन्स आर आल्सो देयर टू फॉर्म द डेस्मोसोम, ठीक है. एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. दीज आर द एडाप्टर प्रोटीन. दिस इज इन जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंट जंक्शंस. तो तीन जंक्शन कौन कौन से हो गए, वन इज दिस टाइट जंक्शन, सेकेंड इज अडहेरिंग जंक्शन, थर्ड इज गैप जंक्शन, ठीक है. तो अडहेरिंग में दो हो जाएंगे, एक डेस्मोसोम हो जाएगा, और ये जो बेल्ट लाइक जो दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज जोनुलर अडहेरेंस, ठीक है. तो डेस्मोसोम में दो कैटेगरी है. वन, देखो आप डेस्मोसोम की जो डिस्क है विच आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, ठीक है. दिस डिस्क इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. बट व्हेन सेल इज अटैच्ड टू द दिस मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल, सेल के नीचे की तरफ जो बेसल मेम्ब्रेन होती है उससे भी सेल को अटैच होना है, ठीक है. आपस में तो जुड़ी है, लेकिन सेल हैज टू अटैच, ठीक है,
इन इट्स लोअर पार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ना है या बेसल मेम्ब्रेन से जुड़ रहा है, तो देयर इज हाफ पोर्शन ऑफ द डेस्मोसोम. ये क्या है? पूरा है कंप्लीट डेस्मोसोम. हाफ दिस वन, ठीक है, of two adjacent cells. This complete portion is known as desmosome. When this half is present here, and then it is known as hemi means half. All of you are knowing about this. ठीक है, hemiplegia आपने सुना होगा. तो hemi means because the half portion is present here. ठीक है, तो hence called as hemidesmosome. अभी स्ट्रक्चर आगे बताऊंगी. तो desmosome is disc-like structure, half portion from one cell, half portion, another half is from the another cells, and they form the complete disc-shaped structure, and that is known as desmosome. But in case of hemidesmosome, because the cell membrane, basal portion of the cell membrane that is attached to the subepithelial part with the help of integrin protein, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, तो only half, यहाँ पे कोई सेल नहीं है तो ये पोर्शन तो नहीं होगा, only half रहेगा, hence it is called as hemidesmosome. Okay, so this is generalized picture about the different types of junctions. ठीक है, in gap junction आप देख रहे हो, there is formation of pores. ठीक है, by different proteins जिनको अपन कनेक्शन कहते हैं, और उससे क्या होगा, something from one cell get transferred to the other cell. तो ये pore से ट्रांसफर हो सकता है. And these all are desmosomes. ये दिख रहे हैं because this is 3D picture. थोड़ा सा इसको कोशिश करी गई 3D. तो you can see here also some desmosomes are present. Okay, तो एक पार्ट ये होगा, दूसरा उस तरफ वाले सेल में होगा. ठीक है, and these two are the hemidesmosomes. Okay. About the tight junction, tight junctions are also known as zonula occludens. ठीक है, another name for tight junction is zonula occludens. इसमें कौन सी प्रोटीन का मेन रोल होता है? क्लाउडिन, और जिसको अपन ऑक्लूडिन प्रोटीन कहेंगे. तो here the cell membrane are closely and tightly bound together by ridge-like structure contributed by both the adjacent cells. Structure का मतलब है प्रोटीन्स. ठीक है, these are present in the columnar cells of GI tract. This is the location. ठीक है, and transmembrane protein, फिर से बोल रही हूँ, transmembrane protein is occludin और claudin. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये इन केस ऑफ टाइट जंक्शन. ठीक है, क्योंकि ये टाइट करके रख रही है, तो hence the name has been given as occludin or claudin transmembrane protein, which is responsible for the formation of the tight junction. Okay, they intermingle to each other, बिल्कुल उसको टाइट करके रहेगी. ठीक है, प्रोटीन बिकॉज दिस इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, पूरा एक मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगी उससे तक. तो विच जॉइंस द टू सेल मेम्ब्रेन टुगेदर. द मेन रोल ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है, क्या रहेगा? दिस जॉइंस द, अभी इसके बाद पिक्चर आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्या? ऑक्लूडिन प्रोटीन इज सेल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तो सेल मेम्ब्रेन में दोनों की, उसके इस तरफ भी साइटोप्लाज्म है, इस तरफ भी साइटोप्लाज्म है. ओके, तो हेंस ऑक्लूडिन से अनदर प्रोटीन एक जुड़ेगा ZO1. ठीक है, these are known as साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, और दूसरा होगा ZO2. ठीक है, तो पहले ऑक्लूडिन प्रोटीन हो गया, दैट इज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन. साइटोप्लाज्म की तरफ जाएंगे. ठीक है, ऑक्लूडिन इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, अब दोनों तरफ चलेंगे साइटोप्लाज्म की तरफ, तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा देयर इज प्रेजेंस ऑफ ZO1 प्रोटीन ऑन बोथ साइड, देन उसके आगे चलेंगे ZO2 प्रोटीन. ठीक है, तो ये कनेक्शन रहेगा फ्रॉम द ऑक्लूडिन प्रोटीन टू ZO1 देन ZO2, एंड लास्टली जो रहेगा स्पेक्ट्रिन प्रोटीन. तो ये कनेक्शन कैसे बनेगा? पहले सबसे पहले क्या रहेगा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. ये दोनों कहाँ रहेंगे? ये जुड़ेंगे ZO1 से, ZO1 ZO2 से, फिर ZO2 विद द स्पेक्ट्रिन. स्पेक्ट्रिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये पूरा लिंक करेंगे एंड दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द दिस टाइट जंक्शन. ठीक है, तो यू मस्ट नो द नेम ऑफ दिस प्रोटीन. In case of tight junction, the main role of occludin protein. ठीक है, फिर वो पेरिफेरी सेल की तरफ जाएगा कहना चाहिए. तो एक दूसरा प्रोटीन होगा दैट इज नोन एज ZO1 प्रोटीन, जो बिल्कुल बाहर की तरफ रहेगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा. देन टू द ZO2 प्रोटीन. ठीक है, एंड लास्टली द स्पेक्ट्रिन प्रोटीन. ठीक है, यू सी द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हियर इन दिस कॉलमनार सेल्स जो आप देखोगे, इसके ऊपर की तरफ, ऊपर देखोगे यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ द टाइट जंक्शन. ठीक है, तो दिस टाइट जंक्शन में जो ये प्रोटीन दिखा है, एक्चुअली एक सेल मेम्ब्रेन ये कह सकते हैं आप, दूसरी वाली दिस इज द अनदर सेल मेम्ब्रेन, एंड दे आर अटैच्ड टू ईच अदर. तो ये जो जुड़ी हुई है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, दिस इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, तो इनको अपन कह सकते हैं क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन प्रोटीन्स. ठीक है, और ये अंदर की तरफ जाएंगे तो दीज आर द डिफरेंट प्रोटीन्स मैंने बताया था. ऑक्लूडिन क्लाउडिन हो गया,
ठीक है। इसमें कैडेरिन का हालांकि कोई ज्यादा रोल नहीं, ZO1 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ZO1 ZO2 ये आगे ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस में दिया है, इनको आप ज्यादा ध्यान नहीं देना। यू मस्ट नो प्रोटीन पहला हो जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाएगा, फिर ZO1 प्रोटीन, देन ZO2 प्रोटीन एंड लास्टली स्पेक्टिन प्रोटीन। बस इतना आपको याद रखना है इन केस ऑफ टाइट जंक्शन, ठीक है। एंड जनरली दिस टाइट जंक्शन दे आर प्रेजेंट इन द अपाइकल पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। एंड दिस टाइट जंक्शन इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी मटेरियल। अगर इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इंजेस्टा यहाँ पे, तो इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ दिस मटेरियल इन द दिस सब इंटरसेलुलर स्पेसेस एज वेल एज सब एपिथेलियल एरिया, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करेगा कोई भी सब्सटेंस को एंट्री करने के लिए बिटवीन द सेल्स एज वेल एज इन द सब एपिथेलियल एरिया, ठीक है। तो जनरली द टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट और apical part of the adjacent cells, ठीक है। Another name is occluding junction. तो इसमें आपको कौन कौन सी प्रोटीन मेनली याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है। वन इज क्लाउडिन और ऑक्लूडिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, देन ZO1 ZO2 प्रोटीन्स, ठीक है। एंड थर्ड नेक्स्ट प्रोटीन आएगा दैट इज द स्पेक्टिन प्रोटीन विच इज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चेन बनेगी एंड दैट सपोर्ट दीज टाइट जंक्शंस, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज जोनुलर अडेरेंस और एंकरिंग। टाइट जंक्शन में कोई कंफ्यूजन, एनीबडी? नो मैम। टाइट जंक्शन में लोकेशन पता होनी चाहिए, एग्जांपल एंड बहुत ज्यादा याद नहीं, लेकिन मेनली आपको क्या क्या याद होना चाहिए। वन इज ऑक्लूडिन एंड क्लाउडिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, पहली चीज ध्यान रखना। Then they are attached to the ZO1 protein, then ZO2 protein. These are the peripheral cytoplasmic protein, ठीक है। एंड उसके बाद ही जाके कहाँ जुड़ेगा अंदर तक सपोर्ट करने के लिए स्पेक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो these proteins you must know about the tight junction, और बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बट these thing you must know, these names, ठीक है, आपको याद होने चाहिए regarding the tight junction, okay, and as well as their position. Next is adhering junction, ठीक है। These adhering junctions, they are not as tight as that of the occluding junction, and there is no communication as in gap junction, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में होगा। The adhering junction are also called as anchoring junction, ठीक है, एंकरिंग बोल सकते हैं या adhering junction, ठीक है। तो इनमें जो प्रोटीन होता है मेनली आप ध्यान रखना, वहां पे क्या था, क्लाउडिन प्रोटीन था, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज कैडरिन, ठीक है। मेन प्रोटीन क्या है ये, इसके बाद कैटिन होगा, लेकिन पहले जो प्रोटीन है दैट इज द कैडरिन प्रोटीन। नाम आपको याद होना चाहिए। इन केस ऑफ एडेरिन जंक्शन द मेन रोल ऑफ द कैडरिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इन केस ऑफ ऑक्लूडिन सॉरी टाइट जंक्शन मेन रोल ऑफ क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। लेकिन एडेरिन जंक्शन में कौन सा प्रोटीन होगा, कैडरिन, ठीक है। तो कैडरिन प्रेजेंट इन केस ऑफ जोनुलर अडेरेंस, ठीक है, जब बेल्ट लाइक होगा, और एज वेल एज इन द दिस डेस्मोसोम्स, दोनों में ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होगा, कैडरिन होगा। ऑल्दो अडाप्टर प्रोटीन जो अंदर की तरफ है दैट वेरीज, ठीक है, इसलिए एक में डिस्क लाइक शेप बनता है, एक में बेल्ट लाइक होगा, बट देयर इज कॉमन, बिकॉज इसलिए दोनों का ही नाम अपन ने बोला है, दे कम अंडर अडेरिंग जंक्शन। Why? Because the protein, transmembrane protein is the cadherin in both cases. In case of macula densa और जिसको अपन डेस्मोसोम कहते हैं, या बेल्ट लाइक जो अडेरिंग जंक्शन और जोनुलर अडेरेंस होगा, ठीक है, उसमें भी अपन there is presence of the cadherin transmembrane protein. तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। What is transmembrane protein? Transmembrane protein which is the protein which is present across the cell membrane, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन की विड्थ से, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंट रोल सेल जंक्शन में होता है। एज वेल एज जो सिग्नलिंग होती है, रिसेप्टर का रोल अदा करना है, तो वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। जितने भी एक्वस मटेरियल दे कम इनसाइड द सेल थ्रू दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। Then the extracellular region of a cadherin molecule engages in homophilic binding with the cadherin, ठीक है, molecule extending from adjacent cell, thus forming a protein bridge. इसमें protein bridge form होती है between the cells. तो आपको ब्रिजिंग कैसे फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कैडरिन प्रोटीन। इसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, बस इतना याद रहे। कैडरिन प्रोटीन बताया था, कैडरिन एंड कैटिनिन ये दोनों की लिंकिंग होती है। तो सबसे बाहर कौन सी है, सेल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज द कैडरिन। कैडरिन गेट्स अटैच्ड टू दिस कैटिनिन, ठीक है।
तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कैडरिन एंड कैटेनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है. एंड इनसाइड दिस सेल और इनसाइड द साइटोप्लाज्म these the proteins कौन कौन से हो गए, कैडरिन एंड कैटेनिन, दे आर अटैच्ड टू द माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है. मे बी एक्टिन हो सकता है या अदर फिलामेंट्स होते हैं जिसको अपन अगर टोनोफिलामेंट्स भी कह सकते हैं, लाइक इन एपिथेलियल सेल्स वी कॉल इट एज ए साइटोकेराटिन, ठीक है, या टोनोफिलामेंट्स. तो अंदर की तरफ दे आर अटैच्ड विद द माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे रोल मेन कौन सा है इन एंकरिंग जंक्शन, प्रेजेंस ऑफ द कैडरिन, ठीक है. कैडरिन इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, अंदर की तरफ दूसरे प्रोटीन से वो जाके जुड़ेगी, दैट इज द कैटेनिन. कैटेनिन किससे जाके जुड़ेगी, विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और अंदर की तरफ. तो 3 प्रोटीन का लिंक हो गया. माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो प्रोटीन. तो पहला हो गया कैडरिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, देन कैटेनिन एंड लास्टली द माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है. इन जोनुलर अडेरेंस क्योंकि बेल्ट लाइक होता है, कैडरिन जॉइंस माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ नेबरिंग सेल्स इनटू ए नेटवर्क फॉर्म में होगा, ठीक है, वेब लाइक होगा, ठीक है. द माइक्रोफिलामेंट्स आर कनेक्ट विद द टर्मिनल वेब व्हिच रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ द, अब ये जो मैंने बताया था डिफरेंट माइक्रोफिलामेंट्स, तो ये आ गए इसमें एक्टिन, मायोसिन, इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लाइक केराटिन फिलामेंट्स, ठीक है. तो कैसे कनेक्शन हो रहा है इन केस ऑफ अडेरिंग जंक्शन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा होगा, एनीबॉडी इन केस ऑफ अडेरिंग जंक्शन, मेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, कैटेनिन, कैडरिन, कैडरिन, ठीक है. सबसे जो बाहर की तरफ होगा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा दैट इज कैडरिन. कैडरिन किससे जुड़ता है, कैटेनिन से. कैटेनिन अंदर की तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जो आप देख रहे हैं, मे बी एक्टिन होगा, मायोसिन होगा एंड केराटिन फिलामेंट्स, ठीक है. तो इसमें 3 चीज याद रखोगे, पहला कैडरिन, दूसरा कैटेनिन अंदर की तरफ जाएगा सेल में, उससे अंदर डिफरेंट माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है. तो 3 की, जैसे वहां पे डाइट जंक्शन में बताया था वैसे यहाँ पे हो जाएगा कैडरिन, कैटेनिन एंड दिस माइक्रोफिलामेंट. इस जंक्शन इसमें भी तीनों दिया हुआ है हालांकि, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम है. अडेरेंट जंक्शन में आप देखोगे यहाँ पे कैडरिन है और ये जो दिखाई दे रहे हैं दीज आर द कैटेनिन, ठीक है. तो कैडरिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इट इज अटैच्ड टू द कैटेनिन. देखो दोनों साइड में कैटेनिन येलो कलर का दिखाई दे रहा है. एंड कैटेनिन जो है उससे एंकरिंग होती दूसरे प्रोटीन लाइक एक्टिन फिलामेंट्स, जिसमें अब मैंने आपको मायोसिन बताया था, ठीक है. तो क्लियर हो गया, दिस इज द अडेरेंट जंक्शन जिसको जोनुलर अडेरेंस कहते हैं, ओके. ये वाली प्रोटीन कौन सी होगी, कैडरिन, रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. कैडरिन प्रोटीन अटैच टू द कैटेनिन, ठीक है. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कैडरिन कैटेनिन कॉम्प्लेक्स. देन दिस कैटेनिन जो है दैट इज अटैच टू डिफरेंट एंकरिंग प्रोटीन जिसको अपन कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स. दैट में भी एक्टिन हो सकता है, दैट में भी मायोसिन हो सकता है, दैट में भी केराटिन, जो आपको पहले बताया. इज इट क्लियर रिगार्डिंग दिस अडेरेंट जंक्शन? एंड अनदर फॉर्म ऑफ दिस अडेरेंट जंक्शन इज, बिकॉज डिस्क लाइक फॉर्मेशन में हो रहा है तो इसको अपन क्या कहते हैं, डेस्मोसोम, ठीक है. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और विच इज फॉर्म बाय द एडाप्टर प्रोटीन, जो अभी मैं आगे बताऊंगी. तो ये अडेरिंग जंक्शन, जोनुलर अडेरेंस क्लियर हो गया आप लोग को. देन डेस्मोसोम और मैकुला अडेरेंस, ठीक है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ दिस अडेरिंग जंक्शन, ठीक है, और एंकरिंग जंक्शन, ठीक है. पहला था जोनुलर अडेरेंस जो कि बेल्ट लाइक फैशन में था, लेकिन आप ये देखोगे ये पूरा बेल्ट लाइक फैशन में जाएगा, ठीक है. बट जो डेस्मोसोम है वो डिस्क लाइक मैनर में जाएगा, ठीक है. दीज बोथ आर कंसिडर्ड category that is known as adherent junction और anchoring junction, okay. शेप के कारण इसको अपन डेस्मोसोम कह रहे हैं बिकॉज डिस्क लाइक शेप है. डेस्मोसोम आर आल्सो नोन एज मैकुला अडेरेंस, ठीक है. जो डिस्क बनी थी अपने देखा तभी लास्ट उसमें स्लाइड में, दिस इज अबाउट 200 to 400 नैनोमीटर डिस्क लाइक, ठीक है. ये जो डिस्क का जो ये पूरा अपन अगर मेजरमेंट करेंगे टोटल, तो दिस इज अबाउट 200 to 400 नैनोमीटर इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है. कंप्लीट डिस्क का फॉर्मेशन जो होगा, एंड दीज डेस्मोसोम्स आर जनरली सीन इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है. जिसमें क्योंकि आपने देखा होगा देयर इज प्रेजेंस ऑफ द केराटिन प्रोटीन और टोनोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है. तो स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, अभी अपन एपिथेलियम में पढ़ेंगे, दैट हैज द डेस्मोसोम्स, ओके. वो मैं एपिथेलियम में आपको बताऊंगी. लाइक जोनुलर अडेरेंस, मैकुला अडेरेंस आल्सो हैव कैडरिन. मैंने ये पहले ही बता दिया था बिकॉज दिस
both the junctions are anchoring junction or adhering junction. तो transmembrane protein तो दोनों में एक जैसे ही, that is the cadherin. Cadherin present in the zonal adherens as well as in the desmosome. ठीक है. But difference here in case of desmosome, two prominent dark staining adapter protein. जो आपको dark color के जो disc formation होता है, that is due to the adapter protein that forms the plaques. ठीक है, located inside the two adjacent cell membrane. तो plaques कहाँ पे अपन देखेंगे? These are the two जो plaques दिखाई दे रहे, plaques को अपन कहेंगे that is formed by the adapter protein. अब ये और देख लो, adapter protein और they are attached with the intermediate filament. The intermediate filament which is present in the epithelium. Anybody last class में पढ़ाया था. In the epithelium, name the intermediate filament. Keratin. Good, keratin. ठीक है. So that is also known as tonofilament. ठीक है. तो अभी अपन स्किन में देखेंगे जब एपिडर्मिस पढ़ेंगे तो उसमें there is role of this intermediate filament that is keratin और cytokeratin. ठीक है. तो ये क्या करता है, आप यहां से देखोगे इस तरीके से ये यू शेप लूप बनाना भी शुरू करेगा और इसको खींच के रखेगा इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क लाइक. ठीक है. तो टोनोफिलामेंट्स जो होंगे दे फॉर्म द यू शेप लूप एंड दे मेंटेन द शेप ऑफ दिस डिस्क. ओके. तो प्लेक्स ऑफ दिस अडैप्टर प्रोटीन आपने देख ही लिया. दिस इज द स्ट्रक्चर. अगेन आप देखोगे यहाँ पे इधर आएगा पूरा का पूरा बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ द दिस इज द एक्चुअली कैडहेरिन प्रोटीन. ठीक है. ये दोनों साइड में आप देखोगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेक्स जो बोलेंगे दैट इज फॉर्म बाय द अडैप्टर प्रोटीन नाउ आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक प्लेक्स. ठीक है. एंड ये जो फिलामेंट्स जो आप देख रहे हैं दिस आर द साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है. ठीक है. तो ये इस तरीके से डिश शेप फॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ मैकुला अडेरेंस कह सकते हैं, मैकुला डेंसा बोलेंगे इसको अपन. ठीक है. Then hemidesmosome. Hemidesmosome is another type of desmosome. In desmosome we require the two cell membrane or two cells. ठीक है. तो cell membranes of two cells are required in case of desmosome. But in case of hemidesmosome, because the cells जो रहेगी basal membrane रहेगी, that requires the attachment to the this subepithelial area और connective tissue से attachment होना है. तो वहां पे नीचे तो कोई सेल है नहीं, तो hence half portion of the desmosome is present. Hence the name given hemidesmosome between the basal part of the plasma membrane and subepithelial connective tissue. Is it clear? Okay. It connects plasma membrane to connective tissue by way of specific cell surface matrix receptor proteins. यहाँ पे नाम आएगा इंटीग्रिन प्रोटीन. ये ध्यान रखना, इंटीग्रिन प्रोटीन का नाम डेस्मोसोम में नहीं आता है, बट हियर बिकॉज जो बेसल पार्ट होगा सेल मेम्ब्रेन का दैट गेट्स अटैच्ड टू द कनेक्टिव टिश्यू विद द हेल्प ऑफ दिस अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, फिलामेंटस प्रोटीन होगा एंड दैट इज नोन एज इंटीग्रिन. ठीक है. तो इंटीग्रिन का रोल क्या है? टू कनेक्ट द बेसल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सब एपिथेलियल टिश्यू. ओके. अल्ट्रा स्ट्रक्चर हेमिडेस्मोसोम लुक्स लाइक हाफ डेस्मोसोम. इसके मेरे पास बहुत अच्छे फोटोग्राफ है, ओरिजिनल जो थीसिस के थे वो मैं आप यहाँ आओगे तो मैं दिखा दूंगी. ठीक है. विथ अ प्लेक ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म द फ्रॉम विच इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रेडिएट इनटू द साइटोप्लाज्म. लेकिन जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया नीचे तो इंटीग्रिन आ गया. ठीक है. इंटीग्रिन का रोल क्या है? कनेक्टिव टिश्यू से जोड़ने का, बेसल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. बट अपर की तरफ जोड़ने का सेम रहेगा एज इन केस ऑफ डेस्मोसोम. ठीक है. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो ऊपर वाला पोर्शन वैसे ही बन रहा है, जस्ट लाइक हाफ डिस्क कह सकते हैं. तो दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डेस्मोसोम. एक बनेगा एडाप्ट सकते या केराटिन प्रोटीन पिन लाइक शेप बनाएंगे विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डेस्मोसोम. ये आपको हेमिडेस्मोसोम का स्ट्रक्चर जो देखेंगे. ठीक है. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है, सब एपिथेलियल एरिया बेसल मेम्ब्रेन है. ठीक है. देयर इज अटैचमेंट जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हेमिडेस्मोसोम कहलाएगा. ठीक है. तो इंटीग्रिन आप देख रहे हैं जोड़ने का काम कर रहा है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, बेसल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू द सब एपिथेलियल पार्ट या बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम कर रहा है. ऊपर वाला पार्ट वैसे ही है, दिस इज अडैप्टर प्रोटीन. और ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ठीक है. फॉर्मिंग द यू शेप लूप दिख रहा है आपको ये.
और ये स्ट्रेच करके रखेंगे एंड दे मेंटेन द शेप ऑफ दिस डिस्क. ओके, स्ट्रेच करके रखेंगे ऑन फ्रॉम ईच साइड. तो दिस इज हेमिडेस्मोसोम. इसका नीचे वाला पार्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये नीचे एपिथेलियम नहीं है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हेमिडेस्मोसोम. यहाँ पे लिखा हुआ केराटिन प्रोटीन. ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट से जो now regarding the gap junction. Why there is requirement of the gap junction? When there is need of transfer of one material from one cell to another. ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो सकता है. टाइट जंक्शन में तो बिल्कुल ऊपर लूमेन से कुछ भी चीज एपिथेलियल एरिया में नहीं जा सकती. लेकिन जब रिक्वायरमेंट है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, देन देयर इज अ नीड ऑफ गैप जंक्शन. ओके, तो इट इज ऑल्सो नोन एज नेक्सस और कम्युनिकेटिंग जंक्शन. गैप जंक्शन को अपन और क्या कह सकते हैं? नेक्सस और कम्युनिकेटिंग जंक्शन. ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द फ्री पैसेज ऑफ आयंस. जा सकते हैं शुगर एज वेल एज जितना, अगर 1000 डाल्टन से जो नीचे का मॉलिक्यूल का साइज होगा, दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मेशन जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दैट इज नोन एज कनेक्सॉन. ठीक है, दैट इज नोन एज connexons. ठीक है, and that span the gap and form narrow channels. narrow channel बन जाएंगे from one cell to another through which the small molecules may pass from one cell to another. ठीक है, जिसका डायग्राम आपने पहले ही देख चुका है. ठीक है, तो लोकेशन की बात करेंगे तो एग्जांपल है, these are present in the osteocytes, they are also present in the nerve cells and intercalated disc in heart. ठीक है, तो जो भी केमिकल्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर होगा, तो बेस्ट एग्जांपल्स आर ऑस्टियोसाइट्स, नर्व सेल्स, न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर करना है. ठीक है, एज वेल एज इंटरकैरेटेड डिस्क में भी होगा इन हार्ट. ओके, this is the schematic diagram of this gap junction. You can see this narrow channel formed by the different proteins. ठीक है, ये अगर मॉलिक्यूलर लेवल में जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, तो इतना आपको नहीं पढ़ना है. तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस नैरो चैनल. ठीक है, तो वो जानने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि दिस नैरो चैनल है, दैट इज नोन एज कनेक्सॉन, व्हिच इज फॉर्म बाय द डिफरेंट प्रोटीन्स. ठीक है, स्पेस बता दिया, जब इनके बीच बीच में होगा तो 2.7 नैनोमीटर है. एंड दिस कनेक्शंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ठीक है, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दिस कनेक्शन. आप देख रहे हो कि प्रोटीन का जो ये है, ये इस तरीके से अरेंजमेंट है. तो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल दिस मटेरियल कैन ट्रांसफर. ओके, सेल्स. ठीक है, एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग सेल जंक्शंस? इसके बारे में कुछ पूछना है? आप लोग आंसर नहीं करते, कुछ भी बोलो, यस बोलो, नो नो बोलो, ऐसा बिल्कुल प्लेन रहते हो, कुछ समझ नहीं आता बच्चे. एम आई ऑडिबल? यस मैम. तो तुम लोग इतने चुप बैठ के कैसे पढ़ाई कर सकते हो? क्या आपको अनम्यूट होने में टाइम लगता है, उस इंटरेक्शन होगा, बट ऐसा लगता है कि आप चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही. ये समझ में आ गया तीनों जंक्शंस? यस मैम. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास या अभी अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पावर पॉइंट तो मैं शेयर करने में फिर मेरे को टाइम लग जाएगा. जस्ट मैं आपको बिना पावर पॉइंट के थोड़ा सा बता देती हूँ रिगार्डिंग एपिथेलियम. ठीक है, ये सेल के बारे में क्लियर हो गया. रिगार्डिंग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल भी आपने थोड़ा बहुत देख लिया है. ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर लाइक क्रोमेटिन, न्यूक्रोमेटिन. नाउ द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद एपिथेलियम. ठीक है, एपिथेलियम, हाउ वी डिफाइन द एपिथेलियम, एनीबॉडी? देन मैम, outermost covering of the organ or body which protect the organ from external environment. Okay, so epithelium is present only outer side. It is not present in the inside of the body. Ma'am, it is also
in epithelium present in all surface, either either skin or internal organs also, like हाँ, esophagus, stomach, in all surfaces. so epithelium present on the outer surface of the maybe body, we can say, maybe organ, or it lines the lumen of the uh, organs as well as duct. ठीक है, तो एपिथेलियम को कैसे डिफाइन करेंगे? एपिथेलियम इज द शीट लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. शीट होती है ना, जैसे एक के ऊपर एक, या तो एक साथ एक सेल के बाजू बाजू में जुड़ेगी. ठीक है, तो व्हाट इज एपिथेलियम? एपिथेलियम इज ए शीट लाइक, शीट जैसा, ठीक है, शीट लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. ठीक है, दैट कवर्स द बॉडी. ठीक है, बाहर की तरफ से कवर भी कर सकता है, कवर्स द बॉडी और ऑर्गन एंड इवन लाइंस द ऑर्गन्स एज वेल एज डक्ट्स. ठीक है, तो ऑर्गन की लाइनिंग भी बना सकता है, जैसे अपन म्यूकोजा पढ़ते हैं, म्यूकोजा में सबसे पहले एपिथेलियम पढ़ेंगे, तो इंटरनल लाइनिंग भी बना सकता है. बाहर प्रोटेक्शन के लिए भी है, जैसे एपिडर्मिस है, दैट इज आल्सो एपिथेलियम. ठीक है, कोई भी अपन सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, कोई भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उनकी डक्ट सिस्टम भी लाइनिंग होती है. तो एपिथेलियम जनरली हॉलो ऑर्गन में मिलती है, एज वेल एज इट आल्सो कवर्स द ऑर्गन एज वेल एज द बॉडी. ठीक है, तो इन जनरल वी कैन से द एपिथेलियम इज अ शीट लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. ठीक है, शीट लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स विच कवर्स द बॉडी और ऑर्गन एंड ऑर्गन्स. ठीक है, एज वेल एज लाइंस द इंटरनल दिस ल्यूमेन ऑफ द ऑर्गन्स एंड द डक्ट्स. ठीक है, तो ये इसमें पूरा चीज कवर हो जाती है कि बाहर की कवरिंग भी बना रही है, अंदर की लाइनिंग भी बना रही है, डक्ट की लाइनिंग भी बना रही है, तो दैट इज नोन एज एपिथेलियम. ठीक है, इवन ग्लैंड्स आर दे आर आल्सो डिराइव फ्रॉम द एपिथेलियम, नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, तो इतनी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग एपिथेलियम. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एपिथेलियम के. ठीक है, जो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था? एनीबॉडी? फीचर ऑफ एपिथेलियम, प्रेजेंस ऑफ, कुछ पढ़े थे अपन ने? अभी भी बताया, आज भी अभी डिस्कस किया था. श्रिया, बलवंत, नहीं याद आ रहा? peculiar characteristic feature of the epithelium. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा? मैम प्रेजेंस ऑफ टाइट जंक्शन. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं टाइट जंक्शन सब में. प्रेजेंस ऑफ अंदर सेल के अंदर क्या होगा? लास्ट क्लास में अभी बताया था कि सही बोला है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और थोड़ा सा इसको और अच्छे से करो. ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की बात अलग है, वो तो सभी सेल मेम्ब्रेन में होगी. और कुछ बताओ. एपिथेलियम absorption and excretion helping secretion. इसके अलावा जरूरी नहीं सब में एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन हो, किसी में सीलिया भी हो रहा है तो Protection. प्रोटेक्शन. और बताओ कुछ प्रेजेंट मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट मैम क्लास में. केराटिन प्रेजेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट. गुड गुड. ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट इज केराटिन और साइटोकेराटिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर. मैंने बताया था कि जब भी कोई एपिथेलियल ओरिजिन करती है, क्योंकि जब ट्यूमर होता है तो मिक्सिंग होती है एक टिश्यू से ट्यूमर. जब आप बहुत बड़ा टिश्यू ट्यूमर ग्रोथ हो जाती है तो वो कौन सी सेल मल्टीप्लाई कर रही है पता करना, कि वेदर मसल सेल माइटोटिक डिवीजन ज्यादा हो रहा है या फाइब्रोब्लास्ट में हो रहा है या कुछ या फिर एपिथेलियम में हो रहा है. तो टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ द ट्यूमर. ठीक है, तो अगर उस ट्यूमर ग्रोथ को हमने लिया, उसके टिश्यू को देखा, आइडेंटिफाई किया उसके अंदर, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, इफ अबंडेंट साइटोकेराटिन, उसका स्पेसिफिक स्टेन करके देखेंगे, इफ देयर इज अबंडेंट साइटोकेराटिन आर प्रेजेंट, मींस दैट ट्यूमर इज एपिथेलियल इन ओरिजिन. ठीक है, तभी तो अपन उसका इलाज कर पाएंगे. पता होना चाहिए ना कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिन हो रहा है कि मसल से हो रहा है कि एपिथेलियम से हो रहा है. तो मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द epithelium is the presence of the cytokeratin, except एक exception है, that is, किसी को पता है?
बहुत जगह एपिथेलियम मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम आते हैं, सिंपल अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एज पर देयर, जैसे अपन लेयर की बात करेंगे तो सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड है, ओके। एज पर देयर, उसमें भी स्ट्रेटिफाइड में भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड अपन कह सकते हैं, सिंपल को ही कंसिडर कर सकते हैं। देन एज पर शेप स्क्वैमस है, देन दिस क्यूबॉइडल है, कॉलमनार सेल्स है, ठीक है। तो हाँ, एक्सेप्ट एक एग्जांपल में पूछ रही थी जिसमें साइटोकेराटिन नहीं होता है, नहीं पता, दैट इज एंडोथीलियम। एंडोथीलियम इज द ओनली एपिथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम किसको लाइन करती है अंकित? एंडोथीलियम इज द एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए। ब्लड वेसल्स, ठीक है। इवन हार्ट कह सकते हैं और ब्लड वेसल्स, ठीक है। वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स जनरली दे आर मे बी लिम्फेटिक्स, ठीक है, दे आर लाइंड बाय द एंडोथीलियम, ठीक है। तो एंडोथीलियम इज द ओनली एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, दे आर डिवॉइड ऑफ साइटोकेराटिन, अदरवाइज साइटोकेराटिन आर प्रेजेंट in each and every epithelium, and the presence of the cytokeratin is the characteristic feature of the, ठीक है, epithelium, okay। अब एपिथेलियम जो है इसको डिराइव कैसे होते हैं? देयर आर 3 लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स, ठीक है, इन द बॉडी। पहला फीचर तो बता दिया, प्रेजेंस ऑफ द साइटोकेराटिन। दूसरा फीचर ऑफ द एपिथेलियम इज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, एनीबॉडी, कहां से बनेगी? एक्टोडर्म। ओनली एक्टोडर्म? ecto, meso and endo. तो तीनों से होगा, एक्टो, मेसो, एंडो से। हाँ, ठीक है। तो ऑल द जर्म लेयर्स दे गिव राइज टू एपिथेलियम। अगर स्किन है या तो उसको, या जो एक्टोडर्म से निकल रही है, तो मेनली स्किन की बात करें तो दैट इज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, एक एग्जांपल हो गया। एंडोडर्म से कौन सी एपिथेलियम डिराइव होगी? Epithelium is present inside the body cavities, हाँ, like epithelium of human, blood vessel, and ब्लड वेसल, अब पूरे जीआई ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके, दैट इज द एपिथेलियम ऑफ द दिस डिफरेंट सिस्टम। जनरली जीआई ट्रैक्ट की बात कर लो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज डिराइव फ्रॉम द दिस एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन आप एंडोथेलियम की बात करोगे तो दैट इज डिराइव फ्रॉम द, एनीबॉडी, मेजोडर्म। हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ से डिराइव हो रहा है? फ्रॉम द मेसोडर्म, ठीक है। तो सब एग्जांपल से समझ में आ गया। दिस एपिथेलियम कैन बी डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म, बेस्ट एग्जांपल हो गया स्किन, और भी जगह है, ठीक है। और मेसोडर्म से एंडोथेलियम हो गया, ठीक है। इवन डक्ट्स कहीं कहीं देखोगे तो दैट इज आल्सो डिराइव फ्रॉम द दिस मेसोडर्म। एंड थर्ड, एंडोडर्म से जनरली जो भी विसल ऑर्गन्स है, ल्यूमेन ऑफ द विसल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन हो गए, स्टमक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए, द एपिथेलियम ऑफ दिस सिस्टम, दे आर ल्यूमेन ऑफ दिस सिस्टम, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म। इन जनरल बात कर रहे हैं, अभी अपन स्पेसिफिकली नहीं जा रहे क्योंकि अभी अपन ने स्टार्ट भी नहीं किया एपिथेलियम। दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस जंक्शंस, जैसे कि अभी बताया था कि टाइट जंक्शन भी हो सकते हैं, एडेरेंट जंक्शन भी हो सकते हैं बिटवीन द, इवन गैप जंक्शंस आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, बिटवीन द एपिथेलियम, ठीक है। तो वो एग्जांपल एक एक लेते चले जाएंगे अपन। तो these epithelium they give rise to the this glandular या एपिथेलियम कह लो या ग्लैंड्स को भी डिराइव करती है। एक चीज और है, एपिथेलियम दे आर नॉट हैविंग, द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम दे आर नॉट हैविंग डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, ठीक है, सीधे ब्लड वेसल्स जो उसमें एंटर नहीं करती है। तो कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा एपिथेलियल सेल्स को? From connective tissue. कनेक्टेड टिश्यू, ओके। और कैसे, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस? कनेक्टेड टिश्यू में ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है मैम, थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। basement membrane by the process of diffusion, ठीक है। means blood vessel endings, they are present in the this subepithelial area, generally in the connective tissue, ठीक है। तो these blood vessels, sorry, these epithelial cells, they receive the nutrition with this by the process of diffusion, तो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ओके। बात करेंगे बेसल मेम्ब्रेन जो है, दैट इज द जनरली ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, उसमें और भी चीजें होती है, मैं बताऊंगी, ठीक है, एक एक करके स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये तो हो गया
peculiar features of the epithelium, presence of the cytokeratin. First thing, they have no direct blood supply. ठीक है, they take their nutrition with the by the process of the diffusion. ठीक है, and they are derived from all the germ layers, maybe ectoderm, maybe mesoderm, maybe endoderm. ठीक है, अब अगर अपन इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, अंकित बताओ कौन कौन सी एपिथेलियम होती है? सब तुम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से. अंकित परमार. Yes, ma'am. On the basis of layers, epithelium is divided into Simple and compound epithelium. simple and compound. Okay. Simple epithelium is having only one layer and compound is having more than one layer. Okay. More than Then simple में as per the shape. Nitin. Squamous, columnar, cuboidal, and pseudostratified, stratified. ओके, सिंपल स्क्वैमस हो गई, सिंपल क्यूबॉइडल हो गई, सिंपल कॉलमनार हो गई. ओके, और स्ट्रैटिफाइड में भी वही आ जाएगा. स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, उसमें भी केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज हो गई. स्ट्रैटिफाइड, देन क्यूबॉइडल एंड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार. ठीक है, इसके अलावा इन बिटवीन दीज टू pseudostratified, एक्चुअली pseudostratified आर सिंगल लेयर एपिथेलियम बट अपीयर मल्टी लेयर. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ द सेल. ठीक है, तो साइज सेल का अलग अलग होगा तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन होगी दैट इज आल्सो डिफर्स, हेंस इट अपीयर्स स्ट्रैटिफाइड. ऑल्दो pseudostratified एपिथेलियम जो है दैट इज द सिंपल वन. ओके, इट अपीयर्स स्ट्रैटिफाइड, हेंस द नेम गिवन pseudostratified. ठीक है, तो एज पर द लेयर्स वी कैन कैटेगराइज इनटू सिंपल एंड कंपाउंड कह सकते हैं या स्ट्रैटिफाइड कह सकते हैं. सिंपल में ही अपन पहले pseudostratified को अलग से कैटेगराइज करते थे, बट नाउ we consider this pseudostratified under the simple one because layer is single stratified. ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस कैसा शेप होगा सिंपल का? Plain sheet like. ओके, तो सिंपल जो एपिथेलियम होती है दे आर फ्लैटेंड सेल्स होंगी, स्केल लाइक सेल्स होंगी. देयर न्यूक्लियस दे आर आल्सो फ्लैटेंड. ठीक है, मतलब फ्लैटन कब किसके करस्पॉन्डेंस कह सकते हैं, किसके रिलेशन में? बेसल मेम्ब्रेन की. ठीक है, जो है एग्जाम्पल कौन से होंगे सिंपल स्क्वैमस के? एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. मैम प्रेजेंस alveoli of lungs. गुड. Endothelium. हाँ, Endothelium. एंडोथेलियम. गुड. और किडनी में कहीं मिलती है? Bowman's capsule. गुड. ठीक है, Bowman's capsule मेनली द पैराइटल पार्ट ऑफ द Bowman's capsule. Bowman's capsule एक्चुअली दो लेयर होगी ना Bowman's capsule की, एक अंदर वाली एक बाहर वाली. तो इनर वाली दैट इज हैविंग पोडोसाइट्स. ठीक है, बट आउटर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दे आर दिस फ्लैटेंड सेल्स होंगे. ठीक, एंड देन एग्जांपल्स आर दिस एंडोथेलियम हो गया. एक और होता है मेसोथेलियम, नाम सुना है कहीं? Where we get the mesothelium? Mesothelial cells, mesothelium. Epithelium of muscles. Cells. क्यों आज दूसरी क्लास नहीं है आप लोग की? मेसोथेलियम कहाँ मिलेगा बेटा आप लोग के लिए? असाइनमेंट मैम बॉडी कैविटीज में. बॉडी कैविटी, Epithelium visceral organ. आउटर जो रहेगी ना, आउटर सिरोसा जो बनता है टिमी का सिरोसा, तो बॉडी कैविटी जो लाइनिंग होती है दैट इज द मेसोथेलियल सेल्स. आपने देखा होगा, अभी आप लोग डायसेक्शन यहाँ पे अभी तक करे नहीं, अभी तक देखा नहीं आपने बॉडी कैविटी, क्योंकि अभी तक बोन्स पढ़ रहे हैं. ओके, व्हेन वी ओपन द बॉडी, ठीक है, तो ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटीज.
एंड देयर इज सम स्पेस, ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल टाइटली अटैच हो रहते, पैक्ड रहेंगे, ठीक है। तो बॉडी कैविटी की जो इनर लाइनिंग होती है एज वेल एज द आउटर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स and inner lining of the body cavities, they are lined by mesothelials. What is the role of mesothelial cells? क्या करती है? Anybody? Separate one organ from different organ and Pardon? protect organ from external damage. फिर से बोलो, क्या मेरे को आवाज नहीं थी? Ma'am, main function is separation of one organ from different body part, different internal organ. सेपरेशन का मतलब दूर मैम रहकर सेपरेशन, सिंपली मैम बाउंड्री बना के रखती है ऑर्गन की वो। बाउंड्री तो बनाएगी, और क्या करेगी बेटा बाउंड्री? और मैम प्रोटेक्ट करेगी ऑर्गन को फ्रॉम डैमेज। कैसे? एंड मैम लाइक जैसे अपन कुछ खाते हैं, इसोफेगस स्टमक में जाएगा, हाँ। तो थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी उसको। वो तो अंदर की लाइन ना, खाएंगे तो अंदर वाली लाइनिंग में ना, ये तो बाहर की लाइनिंग में, ट्यूबुलर जो भी ऑर्गन है ना उनकी बाहर की लाइनिंग में ना, कि अंदर की। अरे सुन लो, अच्छा ठीक है। द मेसोथेलियल सेल्स जो है दे सिक्रीट द फ्लूइड, ठीक है, एक्वस फ्लूइड, ठीक है। तो अपने नाम सुना होगा टिनिका सीरोसा। टिनिका सीरोसा इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। टिनिका सीरो क्रॉस सेक्शन पता है, टिनिका सीरोसा, फिर टिनिका मस्कुलरिस, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, टिनिका सब म्यूकोजा, टिनिका म्यूकोजा, 4 लेयर पढ़ी है ना आपने। तो आउटर मोस्ट इज टिनिका सीरोसा। एक्चुअली सीरोसा इज हैविंग मेसोथेलियल cells, and these mesothelial cells they secrete the watery secretion, hence the name given tunica serosa, ठीक है। तो वाटरी सिक्रीशन आउटर पार्ट से हो रहा है, आउटर जो ऑर्गन की आउटर कवरिंग है उससे हो रहा है, एज वेल एज बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है, जैसे एब्डोमिनल कैविटी की इनर लाइनिंग, दैट इज आल्सो हैविंग मेसोथेलियल सेल्स। दिस आल्सो, तो दिस वाटरी सिक्रीशन फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, ये सिक्रीशन फ्लूइड जो रहेगा वो पूरे के पूरे बॉडी कैविटी में भरा रहेगा, ठीक है। एंड दिस फ्लूइड जो है इट फॉर्म्स अ फिल्म बनाएगा बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स, मींस ऑर्गन और बॉडी कैविटी, या बिटवीन द ऑर्गन्स। तो जिससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन, थोड़ा फ्लूइड भरा रहेगा तो इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन among the different organs when they come in contact with each other, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द adhesion, ये फिल्म बनने के कारण क्या होगा, ये पानी रहने के कारण, क्योंकि मान लो कोई ऑर्गन एक ही लोकेशन में है तो इट प्रिवेंट्स द adhesion, जुड़ने, जो आपस में ऑर्गन जुड़ जाते हैं उसको भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी एक्टिविटीज है, माइक्रो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज भी है, बट मेन रोल जो मेसोथेलियल सेल्स का है, दीस सेल्स दे सिक्रीट द वाटरी सिक्रीशन, इसलिए कभी भी बॉडी कैविटी खोलेंगे तो वो सूखी नहीं रहेगी, फ्लूइड आता है उसमें। फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, बाय दिस मेसोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो बॉडी कैविटी की लाइनिंग में भी मेसोथेलियल सेल्स है, ऑर्गन की बाहर की कवरिंग, नॉट इंटरनल, outer covering is also having lining of mesothelial cells. These cells secrete the watery secretion and that prevents the adhesion of the organs to the body cavity, और among the organ अगर उनके बीच में adhesion है उसको ये prevent करेगी, ठीक है। तो now actually the epithelium will start with the next class along with PowerPoint, ठीक है। तो epithelium एक बार पढ़ के आ जाना तो फास्ट बढ़ जाएंगे फटाफट, क्योंकि दिस इज इजी पार्ट, ठीक है। तो कल पढ़ के आना एपिथेलियम को, मैं फटाफट एग्जांपल पूछूंगी, समझा दूंगी, उसका एग्जांपल आप लोग को बताने हैं, ठीक है। ओके मैम। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। अभी कितने स्टूडेंट्स? थैंक यू मैम। ओके।